بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلسلہ وار قسط نمبر 39 میں آج ہم بیان کر رہے ہیں اسکندریہ کی فتح۔ دربار آراستہ تھا، سلطان ملک صالح تخت خلافت پر جلفہ افروز تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ پر صلاح الدین ایوبی کی نشست تھی۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت پیش کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی ملک صالح کا فرمان بردار تھا۔ اس موقع پر خواتین کے لیے پردے کا خاص اہتمام کیا گیا تھا، کیونکہ مادر ملکہ رضیہ خاتون اور درباری کارروائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس موقع پر نو بیاتہ دلہن شمس النساء بھی موجود تھی، جو اپنے شوہر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تقریر سننا چاہتی تھی۔ آخر درباری کارروائی کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے ہوا۔ کلام الہی کی ہیبت اور جلال اور قاری عبدالستار کی معصور کن آواز سے حاضرین دربار پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ تلاوت کے بعد صلاح الدین ایوبی اپنی شیست پر کھڑا ہوا۔ پہلے اپنے اللہ کی کبرائی بیان کی، پھر نہایت پرجلال لہجے میں اہل دربار سے مخاطب ہوا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ سلطان ملک صالح کی طرف سے بار بار دی جانے والی دعوت کے باوجود سلطان نوریہ کے کئی اہم اور ذمہ داران عمرہ اس اجتماع میں شریک نہیں ہوئے، جہاں بیٹھ کر ہم سب ملتے اسلامی کو درپیش مسائل پر گفتگو کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی باہمی مشورے سے آئندہ کے لیے لائحہ عمل بھی طے کرنا چاہتے تھے کہ بیرونی خطرات سے کس طرح محفوظ رہا جائے، اور اس سلسلے میں اجتماعی کردار کے ساتھ ہماری انفرادی کردار کیا ہوگا۔ مگر یہ خالی کرسیاں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ ہم نے سلطان عادل سے کیے ہوئے وعدے فراموش کر دیے ہیں۔ ذاتی طور پر ایک عملی انسان ہوں اور بلند بانگ داموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، لیکن آج مجھے مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ میں ایک بار وعدہ فراموش انسانوں کو ان کا وعدہ ضرور یاد دلاؤں گا۔ اگر وہ اپنے غلط فیصلوں پر نادم ہو کر واپس لوٹ آئے تو میں والہانہ انداز میں اپنے گلے لگا لوں گا، لیکن اس تنبیہ کے باوجود انہیں اپنے حلف کے الفاظ یاد نہیں آئے تو اسے بدعہد لوگوں کے لیے سلطنت نوریہ کے کسی گوشے میں کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ میں نے بھی سلطان عادل سے ایک عہد کیا ہے تو وہ عہد پورا ہو کر ہی رہے گا، پھر اسے نباتے نباتے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ جو سلطان ملک صالح کا وفادار ہے وہ میرا محبوب اور مخدوم ہے، اور جس نے میرے آقا زادے کے حکم سے سرتابی کی وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی تقریر اتنی اثر انگیز تھی کہ اکثر حاضرین دربار کی آنکھیں بھیگ گئی۔ شمس النساء نے بھی پہلی بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کے حقیقی خد و خال دیکھے تھے۔ مجھے آپ کی رفیقہ حیات ہونے پر فخر ہے۔ ایک پاک باز اور وفادار بیوی نے جذبات کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے شریک سفر کو خراج تحسین پیش کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں سکون اور خوشی کے لمحات بہت ہی مختصر تھے۔ اچانک ایک برق رفتار قاصد مصر سے دمشق پہنچا، اور اس نے صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ فرنگیوں کا ایک بحری بیڑا اسکندریہ کی بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر مادر ملکہ رضیہ خاتون اور اپنی بیوی سے کہا، مجھے ایک سخت جنگی مہم درپیش ہے، اس لیے میں آج ہی مصر واپس جانا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو۔ شوہر کی یہ بات سن کر شمس النساء نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ صلاح الدین ایوبی نے جواباً کہا، آپ اس ہنگامی سفر میں میرا ساتھ نہیں دے سکیں گی۔ جب صلیبیوں کا یہ خطرہ ٹل جائے گا تو میں خود دمشق آ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہنگامی سفر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ شمس النساء نے مسکراتے ہوئے شوہر سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس دشوار سفر میں آپ کو بہت زحمت ہوگی اور میں یہ پسند نہیں کرتا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے رفیق کے سفر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں ایک مجاہد کی بیٹی ہوں اور دوسرے مجاہد کی بیوی۔ شمس النساء نے اپنے محبت امیز مگر پرجلال لہجے میں کہا، میں اس سفر میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، آپ تیاری کریں، میں بھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر شمس النساء کمرے سے باہر نکل گئی۔
बीवी के जाते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मादरे मलका की खिदमत में अर्ज की कि अगर मुझे ये जंगी मुहिम दरपेश ना होती तो मैं कुछ और दिन दमिश्क में ठहरता, ताकि यहाँ की सारी सियासी सूरत हाल वाज़ा हो जाती। मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारे कदमों पर मंजिल हयात को आसान करे। रफिया रजिया खातून ने उदास लहजे में कहा, इन्हें बेटी और दामाद के बिछड़ने का दुख था, मगर वो खुद भी एक मुजाहिद की बीवी थी और उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में ऐसे बेशुमार मनाजर देखे थे कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक महाज जंग से लौट ही रहे थे कि दुश्मनों ने दूसरा महाज खोल दिया और सुल्तान आदिल घर आते आते मैदान जंग की तरफ पलट जाते थे। रजिया खातून की नजरों में मिलने और बिछड़ने की ज्यादा अहमियत नहीं रही थी, मगर चूंकि अब वो बेवा हो गई थी और उमरा की साजिशों ने इनकी परेशानी में इजाफा कर दिया था, इसलिए वो सलाहुद्दीन के जाने से बहुत ज्यादा फिक्रमंद नजर आने लगी। फिर भी रजिया खातून ने अपने दामाद को एक मुजाहिदा की तरह रुखसत करते हुए कहा, बेटे, तुम अव्वल आखिर एक मुजाहिद हो, तुम्हारा हुजरा उर्सी भी मैदान जंग है और तुम्हारी तफरीगा भी अरसा काज। मेरी दुआ है कि हक ताला तुम्हें फतह और नुसरत से हमकिनार करे। सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा हो गया, अल्लाह करे कि मेरे सारे अंदाजे गलत हूं, मगर मुझे दो आदमियों से शिद्दत खतरा लाहक है। एक सुल्तान आदल का भतीजा वाली मौसल और दूसरा सुल्तान मलिक साला का मशीर खास गुश्तगीन। आप इनके हरकत और सकनात पर गहरी नजर रखिएगा। मैंने बाकी उमरा को ताकीद कर दिया कि वो पर्चा नवीसियों के जरिए मुझसे मुसलसल राब्ता रखें। ये कहकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मादरे मलका के हाथ को बोसा दिया और मिस्र की तरफ रवाना हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस वक्त शिद्दत खैरत हुई जब शम्सुल निसा इसके दोष बदोश अपने पसंदीदा घोड़े पर सफर कर रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस राज से बेखबर था कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपनी बेटी को मुकम्मल फौजी तरबियत दी थी और शम्सुल निसा का बेहतरीन सवारों में होना था। शादी से चंद दिन पहले तक शम्सुल निसा नागा मैदान अक्सर में शाहसवारी किया करती थी। ये वही मैदान अक्सर है जिसमें सुल्तान आदल चौहान खिला करते थे। शामी उमरा शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और मीर हसामुद्दीन हुसैन से खुफिया मुआहदे के बाद शाह यरूशलेम ने इन सलूबियों को उकसाया था जो मिस्र से कम फासले पर आबाद थे। शाह अमवी ने अपने एक फौजी दस्ते के बहुत सा असला देकर इन असाइयों की मदद के लिए भेजा जो बहरी कज़ाकी में बड़ी शोहरत और महारत रखते थे। शाह यरूशलेम का मंसूबा यह था कि सलीबी लश्कर बहरी कज़ाकों की मदद से मिस्र के मशहूर बंदरगाह अस्कंद्रिया पर कब्जा करेगा। फिर इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता हसाब तंग होता चला गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी में भी शाह यरूशलेम ने मिस्र के एक और अहम सैली शहर दामियात पर कब्जा करने की कोशिश की थी, मगर सुल्तान आदल की बरवकत इमदाद और आफते आसमानी से इसकी मनसूबाबंदी को खाक में मिला दिया था। मगर अब सूरत पहले से ज्यादा मुख्तलिफ थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफात और मुसलमान उमरा की जाती इख्तलाफात ने शाह अमवी को पूरा यकीन दिलाया था कि इस बार इसे यकीनी तौर पर फतह हासिल होगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी तूफान बरकबार के तरह कहरा पहुंचा और अपनी रफीक हयात को कैसर खिलाफत में छोड़कर अस्कंदरी की तरफ बढ़ा। इसके बरख्त रफ्तारी का ये आलम था कि 12 घंटों का तवील सफर सिर्फ 6 घंटे में तय किया। इस वक्त सलीबियों का बहरी बेड़ा तकरीबन पौन फासले पर पहुंच चुका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरी तौर पर अपने बहरी दस्ते को हुक्म दिया कि वो बिला तखीर समुद्री हदूद छोड़कर अस्कंदरिया के साल पर पहुंच जाए। अपने अमीर का फरमान सुनकर मुसलमान सिपाहियों को शिद्दत हैरत हुई थी। फिर जब वो बहरी दस्ता किनारे पर पहुंचा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने फौजियों का मंतजर था वो तमाम सिपाहियों को लेकर अस्कंदरिया के किले की तरफ बढ़ा। सारे फौजी अपने अमीर की मनसूबा बंदी को समझने से कासर थे। सलीबी बेड़ा किसी मुजामत के बगैर आगे बढ़ रहा था। असाई सलार को इस बात पर हैरत थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने समुद्री हदूद को खुला क्यों छोड़ दिया। सलीबी बेड़े ने वो रात खुले समुद्र में गुजारी। ईसाई फौजी साल के करीब पहुंच चुके थे
तमाम फौजी माहरीन रात भर आपस में मशवरा करते रहे। फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि सलाउद्दीन अयूबी एक नौजवान और नातजुर्बाकार सलार है। इसने माजी के वाकयात के पेश नजर अपनी सारी फौजी ताकत दामियात की सैल पर लगा दी है और अस्कंद्रिया को इसलिए खुला छोड़ दिया है कि इधर से सलीबियों के हमले का कोई खतरा नहीं है। इन क्यासराइयों और मजरुआत के बड़ी वजह शाह यरूशलेम अम्मी का वो खत भी था जिसमें इसने तहरीर किया था कि हमें महाज बदलकर हमला करना चाहिए। इस तरह हम दुश्मन की बेखबरी से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। फिर जब सूरज तुलू हुआ तो अस्कंद्रिया के सैल पर मिस्री फौज का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, सलीबियों को यकीन आ गया कि सलाउद्दीन ने अस्कंद्रिया का महफूज इलाका समझकर इसके दफाई इंतजाम पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। ये सोचकर ईसाई बहरी कज़ाकों ने सलीब का नारा लगाया और बेनियाम शमशीरों के साथ सहल पर उतरने लगे। सलीबी सिपाहियों की तादाद 10,000 के करीब थी। फिर वो मुअत्तद अंदाज में आगे बढ़ने लगे, यहाँ तक कि शहर की फसीद तक पहुंच गए। उन्हें मज़ाहमत का कोई सार नजर नहीं आ रहा। ये सलीबियों के लिए बड़ा फख्र अंगेज लम्हा था। उन्होंने किसी नाल मालूम खतरे का एहसास करते हुए अपनी पेशकदमी रोक दी। बहरी कज़ाकों के सरगना बोराल ने अपनी जंगी मशीरों को मुखातब करते हुए कहा, मैंने आज तक किसी महाज जंग पर ऐसा सन्नाटा नहीं देखा। दूर तक कोई आदमजादा भी नजर नहीं आ रहा। मेरा जाती ख्याल है कि ये सलाउद्दीन अयूबी की कोई चाल है। वाकई वो सलाउद्दीन अयूबी की जंगी चाल ही थी। जब बोराल के सिपाही लौटकर अस्कंद्रिया की साल की तरफ वापस जाना चाहते थे तो मुसलमान सिपाहियों ने अपने कीमीन गांव से निकलकर सलीबियों को चारों तरफ से घेर लिया। इस्लामी लश्कर की ये कीमीन गाहें बड़े अजीब अंदाज में तमीर की गई थी। चंद साल पहले दमियात पर हमले के वक्त सलाउद्दीन अयूबी को तजर्बा हो चुका था कि साहली शहरों की हिफाजत बहुत जरूरी है। नतीजन इसने तमाम साहली शहरों के गिर्द गहरी खंदकें खदवा दी थी। आमतौर पर इस किस्म की खंदकों को पानी से लबरेज रखा जाता था, मगर ये सारे इंतजाम इन इलाकों में मुमकिन है जहां पानी की बड़े बड़े जखायर मौजूद होते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में ये सहूलत मैसर न होने के बायस अस्कंद्रिया की खंदकों को पानी से भरना नागज़ेर था। इसलिए सलाउद्दीन अयूबी ने अपनी फितरी जहानत से एक नया और अनोखा तरीका अख्तियार किया। इसने सारी खंदकों को पत्थरों से बंद कर दिया था। इन तमाम पत्थरों में छोटे मोटे सुराख थे जिनके जरिए बाहर की ताजा हवा खंदकों के अंदर दाखिल होती थी ताकि खंदक में छुपे हुए सिपाही सांस ले सकें। इस तवील खंदक में हर 10 गज के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसे आसानी के साथ उठाकर मुसल्लह सिपाही मुख्तसर तरीन वक्त में बाहर आ सकते थे। फिर जब सलीबी सिपाही शहर पनाह के दरवाजे तक आ गए और फिर उन्होंने किसी लामनू खतरे के एहसास और वापसी का इरादा किया तो सलाउद्दीन अयूबी के तमाम सिपाही चारों तरफ से निकल आए और सलीबी बहरी कज़ाक बुरी तरह मसूर होकर रह गए। इसके बाद एक खूनरेज जंग हुई जो 6 घंटे तक जारी रही। इस जंग में 300 मुसलमानों ने शहादत का दर्जा हासिल किया। इसके बरक्स सलीबी की तादाद 10,000 के करीब थी। 8,000 कत्ल कर दिए गए, बाकी ईसाइयों को कैदी बना लिया गया और तमाम बहरी जहाज मुसलमानों के कब्जे में आ गए। सलाउद्दीन अयूबी के हक में एक बहुत ही नफा बख्श फतह थी। तो दोस्तों, शाह यरूशलेम ने बड़ी अजियत के साथ सलीबियों के इस इबरतनाक शिकस्त की खबर सुनी। अपने सियासी अंदाजों के मुताबिक इसे पूरा यकीन था कि सलीबी लश्कर आसानी के साथ अस्कंद्रिया के बंदरगाह पर कब्जा कर लेगा, मगर एक ईसाई सिपाही का भी जिंदा बचकर वापस न आना एक ऐसी नाकाबिल यकीन खबर थी जिसने शाह यरूशलेम को नहीं पूरी ईसाई दुनिया को हला कर रख दिया था। शाह अमवी के बकौल सिकंदरिया की शिकस्त ने ईसाई की गर्दन शर्म से झुका दी। इसी एहसास को ज़ायल करने के लिए शाह यरूशलेम अपने खास कमरे में बंद होकर 3 दिन तक शराब पीता रहा। अगरचे शाह अमवी एक इंतहाई ओबाश हुक्मरान था और इसकी हराम सरा
में सैकड़ों हसीन कनीजें और होश रबा रकासाएं मौजूद होती थी, लेकिन इन 3 दिनों में इसने किसी औरत की कुर्बत हासिल नहीं की। अगर किसी अमीर ने हाजिर होने की कोशिश की तो शायद अमीर ने चीख कर कहा, मैं इस वक्त शोक की हालत में, कोई मेरे नजदीक ना आए। लोगों से कहो कि वो अपने बादशाह के गम में शरीक हो। बस खिदमतगार दोनों वक्त शाह अमवी को खाना पहुंचा दिया करते थे। बादशाह के इस अमल में ईसाई रियाया भी बहुत दास थी। फिर चौथे दिन शाह अमवी ने अपना दरबार आरास्ता किया और इंतहाई सोगवार लहजे में हाजिरीन दरबार से मुखातब हुआ, अगर तुम लोगों के खून में जरा भी गैरत है तो इस शख्स को हमेशा याद रखोगे। अभी शाह अमवी की मुकम्मल बात नहीं हुई थी कि तमाम अहले दरबार अपने निश्चितों पर खड़े हो गए और बेअक जुबान कहने लगे, हम खुदावंद यूसुफ मसीह और सलीम मुकद्दस की कदम खाते हैं कि इस शिकस्त को कभी फरामोश नहीं करेंगे और सिकंदरिया की शिकस्त का इंतकाम लेंगे। हाजिरीन की पुरशोर आवाजों से पूरा दरबार गूंज रहा था। अभी वो लोग मजीद अहदो पैमान करना चाहते थे कि शाह अमर ने इन्हें डांटते हुए कहा, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। बादशाह का नागवार रंग देखकर तमाम हाजिरीन दरबार दोबारा अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। अब इन किस्मों और वादों से काम नहीं चलेगा। यकायक शाह अमवी का लहजा गजबनाक हो गया था। बाल्डोन सालस के जमाने में भी इसी अंदाज की कस्में खाई गई थी। शाह फ्रांस और शाह जर्मनी अपने लाखों की फौज लेकर आए थे और शिकस्त खाकर इस तरह वापस चले गए थे कि जैसे कोई शतरंज की बाजी हो। यरूशलेम की दौलत दीवार इन्हें आवाजें देते रहे, मगर उन्होंने पलट कर नहीं देखा। याद रखो कि मैं ख्यालों के दुनिया में रहने वाले शहंशाह नहीं हूं। मुझे माजी की हुक्मरानों की तरह अल्फाज से नहीं बहलाया जा सकता। मैं अमल चाहता हूं, अमल और सिर्फ अमल। ये कहकर शाह अमवी चंद लोगों के लिए खामोश हो गया और गहरी नजरों से अहले दरबार के चेहरों का जायजा लेने लगा। तमाम दरबारी परेशान नजर आ रहे थे। शाही उमवी नया फरमान जारी कर दिया, यरूशलेम की हदूद में बसने वाले माँ बाप पर लाजम है कि अगर इनके 5 बेटे हैं तो वो अपने 4 बेटे कलीसिया की आवाज के लिए वक्फ कर दें। वो सब के सब शाही फौज में शामिल होंगे और इनका एक ही मकसद हयात होगा कि वो मुहाज़े जंग पर जाएंगे और सलीब की हिफाजत करेंगे। फिर जब हालत अमन हो तो वो बहरी और मजकी का रज़ाक बनकर मुसलमानों को तजारती काफिले लूटेंगे और कलीसिया के दुश्मनों के एक लम्हे के लिए भी चैन से नहीं बैठने देंगे। ये एक इंतहाई सख्त फरमान था जिस पर अमल करना हर ईसाई के बस की बात नहीं थी। अपने जवान बेटों को कलीसिया के नाम पर कुर्बान कर देना इसार की आखिरी मंजिल होती है, जिसे गुजरते हुए बड़े बड़े बहादुरों के कदम डगमगा जाते हैं। चूंकि हाजिरीन में ज्यादातर उमरा और सरमायादार हजरात थे जो खुद भी ऐश परस्ताना जिंदगी के आदी थे और इनके जवान साल बेटे भी, इसलिए यरूशलेम के आसूदा हाल तबके को शाह यरूशलेम का यह हुक्म बहुत गिरा गुजरा था, मगर वो अपने मजबूर सांस को रोके बैठे थे। फिर एक शख्स अपनी नशिस्त पर खड़ा हुआ और इसने किसी कदर इस लहजे में शाह यरूशलेम से सवाल किया, अगर खुदावंद के हुक्म से किसी माँ बाप का सिर्फ एक ही बेटा हो? शाह यरूशलेम ने जवाब दिया, इस पर भी ये कानून नाफज नहीं होता। हाँ, अगर वो माँ बाप खुशी से अपने इकलौते बेटे को सलीब की हिफाजत के लिए वक्फ कर दें तो ये इनकी अजीम कुर्बानी होगी और खुदावंद यूसुफ मसीह आखिरत में इन खानदान को बड़े इनाम अकराम से नवाजेंगे। इसके साथ ही शाह अमवी ने एक नए कानून के नफाज के साथ एक नया मालियाती शुबा कायम कर दिया। इस कानून के मुताबिक यरूशलेम में बसने वाला हर बाशिंदा अपनी आमदनी का 1/4 हिस्सा पाबंदी के साथ हुकूमत को अदा करेगा और ये रकम सिर्फ हथियारों और घोड़ों की खरीदारी के लिए वक्फ होगी, ताकि मुस्तकबिल करीब में मुसलमानों के खिलाफ एक नई ताकतवर फौज तैयार की जा सके। शाह अमवी के इस ऐलानात ने पूरे यरूशलेम में जंगी फजा पैदा कर दी थी। फिर जब दरबार बर्खास्त हो गया तो यरूशलेम के तमाम उमरा और सरमायादार खलवत में शाह अमवी से मिले और इस कानून की मनसूख करने के लिए कहा, जिसके तहत यरूशलेम में रहने वाले तमाम खानदानों के लड़के जबरी तौर पर फौज में भर्ती किए जाएंगे। शाह अमवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नया कानून उमरा के लड़कों के लिए नहीं
मगर रया को मुतमिन करने के लिए ऐलान तो करना ही पड़ा। अपने बादशाह का जवाब सुनकर तमाम उमरा और सरमायादार मुस्कुराने लगे। हमें मुकद्दस शहंशाह से यही उम्मीद थी और वह हमारे हुकूक का खास ख्याल रखा जाएगा। फिर भी आवाम को दिखाने के लिए आप लोगों कभी कभी फौजी इज्तिमात में शिरकत कर लिया करें। शाह यरूशलेम ने अब उमवी शराब का प्याला होंठों से लगाते हुए कहा। दूसरे उमरा और हाजरीन भी शाह यरूशलेम के साथ बेतकल्लफाना शराब नोशी में मशगूल थे। आप खुद ही सोचें कि हम और हमारे बच्चे किस तरह जंग कर सकते। कसरत शराब नोशी और ऐश परस्ती ने हमारे जिस्मों को खोखला कर दिया है। मुहाज़े जंग पर तो इन्हीं गरीबों की तंदुरुस्त और तवन्ना बच्चे जा सकते हैं जिनके जिस्म में खून भी ज्यादा होता है और मजहब के नाम पर कट मरने की तड़प भी। ईसाई हुक्मरानों की यही बुज़दिली और मुनाफिकत थी जिसकी वजह से इनकी फौजें पे दर पे शिकस्त खा रही थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम 40वीं किस्त में आपको खुशामदीद कहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।